हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या मंदिर एकेडमी। सो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन में हमने आज तक एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लिए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 में से 10th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज tan of cos of sin x. Now see this y. The given function is tan of in bracket cos of sin x. Okay, bracket close. Now differentiate with respect to x. So let us here differentiate with respect to x. We get अगर हम इसको differentiate कर लेते तो कितना मिलेगा? That is dy by dx equal to d by dx of tan cos of sin x. Cos of sin x. Bracket close. So you know the differentiation of tan. tan का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? sec square x. सो ये हो जाएगा sec square x. x मींस कौन है? cos of sin x. cos of sin x. ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनटू d by dx of, इसका भी तो डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, इनटू d by dx of cos of sin x. cos of sin x. सो आएगा sec square x as it is cos of sin x into now the derivative of cos का डेरिवेटिव क्या रहता है? हमेशा माइनस साइन. सो राइट नाउ हियर माइनस साइन ऑफ x. x means sin x into डेरिवेटिव ऑफ, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, तो भूलना नहीं हमें, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, into d by dx of this sin x. Okay, so now next step is therefore dy by dx is equal to this sec square into cos of sin of x bracket close into ये जो माइनस साइन वो रहने दो अभी, नहीं तो माइनस साइन सेक को दे दो तो ये बच जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स एज इट इज. तो यहाँ पे लिखना है साइन ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू cos का डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? दैट इज cos x. यहां पे लिखो इनटू cos x. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, सो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत सा सिंपल, बहुत सा इजी क्वेश्चन है, उसका ये होगा डेरिवेटिव. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज, सो हियर क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट sec of tan of x to the power 4 plus 4 bracket close. So ये वाला डिफरेंशिएशन करना है इसका. Now see this y is equal to sec of tan of x to the power 4 plus 4 bracket close. Now the differentiation. So इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट with respect to x we get, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते तो क्या मिलेगा? That is dy by dx is equal to dy by dx is equal to d by dx of, इसका भी तो डेरिवेटिव लेना है हमें, that is sec of tan of x to the power 4 plus 4 bracket close whole bracket close also. So sec का डेरिवेटिव आपको मालूम है, sec का डेरिवेटिव sec x into tan x. So write down here sec x means कुछ तो अलग टर्म है into tan x means अपना x कौन है? x means ये वाला x, तो यहाँ पे लिखना है tan of x to the power 4 plus 4, right ना? So bracket close into tan x. x means कौन है? tan of x to the power 4 plus 4 bracket close. x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बाद में, into d by dx of tan of x to the power 4 plus 4 bracket close. तो आगे आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अब हमें tan का डिफरेंशिएशन करना है and you know the derivative of tan x. So tan x का डेरिवेटिव कितना है? So derivative of tan x is sec square x. So write down here therefore dy by dx equal to sec of this as it is sec into tan of x raised to 4 plus 4 into tan of x raised to 4 plus 4 into
अब इस tan का डेरिवेटिव sec square x, so sec square x means sec square x, x का मतलब है x raised to 4 plus 4, बट x raised to 4 plus 4 का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता ना x से कम कर लेता, x to the power 4 plus 4 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4 नीचे आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4x क्यूब प्लस 4 तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना आता है, वो तो 0 है, राइट ना। सो मैं यहाँ पे लिखता डायरेक्टली therefore dy by dx is equal to this 4x cube random first, then this sec square x to the power 4 plus 4 into, now this as it is sec tan of x to the power 4 plus 4 into tan x to the power 4 plus 4. Okay, so this is the final answer of question number 12. So question number 12 is बहुत सा easy and simple question है, okay। Then next question is question number 13. So हम देखेंगे about question number 13. So question number 13 is that e to the power, बहुत सा simple question देखो, e to the power log of in bracket log x whole square minus log of x square minus log of x square पावर में है बेटा, कहाँ पे है, पावर में। अगर आप log लेते हो e to the power log of, तो log इसका बेस कितना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, मींस कैलकुलस में log कितना रहता है, e रहता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना मूल्य आपके पास, इतना ही तो बचेगा, ठीक है, इतना ही तो बचेगा। सो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, therefore y is equal to, क्योंकि इसका बेस e, तो आपके पास बचेगा ओनली log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, इतना ही तो है। इसको तो डिफरेंशिएट करो आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लेते हो क्या मिलेगा आपको, therefore dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन आएगा dy by dx, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है dy by dx ऑफ as it is लिखो log x whole bracket square minus log x square, now bracket close, okay। चलो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखते हैं, सिंपल सा है वो, ठीक है। दिखने में बहुत सा बड़ा सा एग्जांपल दिखता है, मगर रूल्स अप्लाई करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है थोड़ा सा। सो dy by dx of log x, x raised to n का डेरिवेटिव आप सब लोगों को मालूम है, x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1, so apply this formula here। so x raised to, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, सेपरेट तो डिफरेंशिएशन करना है आपको, dy by dx is equal to इसका अलग इसका अलग, डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव लेना है, माइनस बीच में, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 into log x, बट log x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, into dy by dx of log x माइनस log x स्क्वायर। अब log x का डेरिवेटिव सब लोगों को मालूम है 1/x, log x का डेरिवेटिव कितना है, log x का डेरिवेटिव 1/x, सो ये आएगा 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस 1/x स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है हमें, ओके। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप इसको, which is equal to dy by dx is equal to 2 log x, 2 into log x, 2 log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x minus 1/x square as it is into x square का डिफरेंशिएशन 2x, right? So x get cancelled, so I have dy by dx is equal to, therefore dy by dx is equal to 2 log x upon x minus यहाँ का 2, यहाँ का 1x remaining minus 2 by x, right? तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। दोनों का डिनोमिनेटर फिर से कैसे इक्वल इक्वल है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें क्या करना है डायरेक्टली, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है तो 2 log x minus 2 upon x, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको ऐसा मिलेगा, क्वेश्चन है,
by dx is equal to this. Therefore dy by dx is equal to this. आया समझ में? Now the next question is next question. Question number 14. So the question number 14 is question number 14 is that question number 14. So question number 14 हमारे पास sin of root में sin of root x. So इसको y is equal to sin of under root of sin of root x. Okay, this is the question. So differentiate with respect to x, we get, अगर हम इसको differentiate कर लेते तो क्या आएगा? That is dy by dx is equal to d by dx of sin of root x. Okay, so sin का डेरिवेटिव सब लोगों को मालूम है, that is cos of कितना है? Cos of sin of root x into इसका भी तो डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा into d by dx of root of sin of root x. Okay, so ये आएगा cos into root of sin root x into root x का डेरिवेटिव बोलेगा कितना था? 1/2 root x, 1/2 root x into रूट में जो क्वांटिटी है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है into d by dx of sin root x, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा into d by dx of sin root x, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. सो कितना आएगा? तो देखो आगे सिंपल है. So the differentiation is dy by dx is equal to cos of, as it is, root sin root x into, देखो 1 into this तो as it is रहेगा divided by a कर दो, तो ये मिलेगा आपको 2 into under root of sin root x into multiplied by, आगे इसका डिफरेंशिएशन sin root x का डिफरेंशिएशन कितना है? that is cos root x, बट root x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1/2 root x आएगा, राइट ना? सो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? दैट इज dy by dx इज इक्वल टू cos of x, फर्स्ट में लिखो cos root x into this quantity cos of root of sin root x upon 2 into 2, 2 2s are 4 into root x, केवल root x into a as it is root of sin root x. Okay, so this is the final answer. So ये आएगा आपका लास्ट वाला आंसर. And next the question number 15. So the last means 15. Now the 18 question in total, but आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है, आप खुद करके देखना है, ठीक है? So 15 question is log of sec of e to the power x square, log of sec of e to the power x square. So y is equal to log of sec of e to the power x square ब्रैकेट क्लोज, इसको डिफरेंशिएट करो. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x we get, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लेते तो क्या मिलेगा आपको? therefore dy by dx is equal to d by dx of log sec of e to the power x square. Okay, so next step मिलेगा, that is dy by dx is equal to, बहुत इजी क्वेश्चन है. so the dy by dx is equal to, therefore dy by dx equal to log का डिफरेंशिएशन 1 upon log x, so 1 upon sec of e to the power x square आएगा into जो अपना x है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है हमें,
So dy dx of sec of e to the power x square, राइट। सो इसका डिफरेंशिएशन करें आप तो आपको मालूम है sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec x into tan x। So as it is first 1 upon sec e to the power x square into इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा वो sec x into tan x, sec का डेरिवेटिव sec x into tan x। So sec x का मतलब e to the power x square into tan x का मतलब e to the power x square into डिफरेंशिएशन जो है x का वो भी तो करना है हमें e to the power x square का, ठीक है ना। तो यहाँ का देखो कैंसिल हो जाएगा। सो 1 into this, सो कितना बचेगा tan of e to the power x square into इसका डिफरेंशिएशन करो e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x square into x square का भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, x square का भी डिफरेंशिएशन करना है। सो ये कितना आएगा, दैट इज tan e to the power x square into e to the power x square into x square का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, दैट इज 2x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x। तो ओनली टर्म अरेंज करो तो मिलेगा आपको 2x into e to the power x square into tan of e to the power x square। So this is dy by dx, dy by dx। Okay, so this is the answer of 15th question। आया समझ में? I hope आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। So once again ये सभी क्वेश्चंस रिवाइज करो, इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको टॉपिक परफेक्टली आएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।